All right. So in today's session, we'll be having a walkthrough of Redux and state management. So basically, we did a study about React and React components. Now, React components are basically one of two types, and those are the functional and the class component. No issues with that. Okay, so both have their own functionalities, and more or less the things are like how are we creating a component and using it. Now the idea is basically, um, if we have the class component, so we are doing three things over there. A component is having three things. It is having a state. Okay, so state is there. Then we do have the functionalities inside it. Okay, so उसके अंदर functionalities हैं. And we also have the DOM. ठीक है, so DOM functions और जो भी state management की logic है, so everything is handled in a single component. Now idea is कि if there is very small component, so फिर तो ठीक है, we do not have an issue. But the issue arises when we do have more than or multiple components and we have to manage it. So that is what Redux comes into picture, and Redux will exactly say how we can rearrange our state logic and keep it simple. Okay, and we'll see how it works. All right, guys. So with that being said, just in status like. So, at which position we are currently? So, all of us have started React or not yet? So, we have started with React, right? Okay. We have started. Okay, that's good. That's good. So, okay, all right, guys. So, let me share my screen and let have a walkthrough. So, a quick walkthrough what we have built till now, and then we'll try to move things to Redux. Okay, just a minute. So, yeah. So we basically created the app component, which was the main component in over here, and the idea was basically to show the form components and the profile component from it. So the form is like basically logging in and sign up. And with that being said, so we did create our profile component. So functionality wise, we are having a state in over here, state logic, and then we have this component at mount, which is basically trying to request to the profile at the mounting. Okay, so why did we use component at mount? Any guesses? Why do we have it over here? Any ideas? Okay, so can we say that? So guys, remember life cycle phases and life cycle method. Yeah, it's a life cycle method. Okay, ठीक है. So पंकज इसका काम क्या था? So And what we were doing एक exactly? इसका काम ये है कि ये रेंडर होने के बाद जो कोड है वो एग्जीक्यूट करता है और ठीक है. यहाँ पर हम साइड जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मेंटेन कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं. ओके, ठीक है. सो बेसिकली द आइडिया इज कि अगर टोकन है JWT टोकन, सो वी नॉट नीड टू लॉग इन अगेन, राइट? तो दिस वाज द आइडिया. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इम्प्लीमेंटेड. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन एंड लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड. सो कॉम्प्लेक्स Yes. स्टेट. ओके, सो गाइस, कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट से प्रॉब्लम ये है कि अगर एक ही कंपोनेंट में ढेर सारी क्लासेस आ जाती हैं, ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ ट्रबल. ट्रबल क्यों? फिर इफ समथिंग वी नीड टू डीबग, तो हमें सारी ट्री डीबग करनी पड़ेगी, रिएक्ट की ट्री पूरी डीबग करनी पड़ेगी, एरर आ कहाँ से रहा है. ओके, सो दैट इज द इशू. तो हम क्या करेंगे कि अपनी स्टेट लॉजिक को अलग रखेंगे, फंक्शनैलिटीज को अलग रखेंगे. ठीक है, एंड विल ट्राई टू सी कि हाउ वी आर सेपरेटिंग द स्टेट. ठीक है, सो दिस वाज द लॉगिन एंड साइन अप फॉर्म गाइस. ठीक है, एंड हमने एक कंपोनेंट बनाया था. तो कंपोनेंट इज बेसिकली कि दोनों लॉजिक को कंटेन करें. तो हमने इस फॉर्म को अलग से यूआई दी हुई है, जो ये क्लास कंपोनेंट है. तो इस क्लास के अंदर ही हमारी फॉर्म भी है. वी आर हैविंग द फॉर्म इन ओवर हेयर. ठीक है, तो हमें HTML जैसे एक जगह पे नहीं लिखना है. सो दिस इज द लॉजिक ऑफ रिएक्ट, कि सारी चीज़ें एक जगह नहीं होंगी और इसी के सारे फंक्शंस होंगे.
बट द प्रॉब्लम इज कि इसके पास भी 4 स्टेट हैं, फिर इसके पास भी स्टेट्स हैं। आई डो नॉट वांट टू हैव दी स्टेट। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये डॉम रिटर्न करे जो भी HTML में रेंडर होने वाला, बाकी स्टेट वाली लॉजिक सेपरेट हो, वो कहीं और लिखा हो। ठीक है, क्यों? बिकॉज अगर मैं इस यूज़र को यहाँ पे रखता हूँ, तो एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। सो आई नीड टू शेयर द यूज़र। जैसे आप ऐसे समझो कि आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे जाते हो, तो जैसे ही यूज़र लॉग इन करता है, तो उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन सारे पेजेस में ट्रैवल करती है। ठीक है, चाहे वो प्रोडक्ट वाली पेज हो या फिर चेकआउट वाली पेज हो, तो उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन हर जगह रहती है, हर पेज पे। तो या तो आप उस इन्फॉर्मेशन को हर बार इस तरह से ट्रांसफ़र करो, जैसे प्रोफाइल पे भेजना है तो आप उसको एट्रीब्यूट जैसे लिखते हैं HTML के, उस एट्रीब्यूट से आप उसको ट्रांसफ़र करो। सो यू हैव दिस वे। ठीक है, तो आप प्रोफाइल पे आए, देन अगेन ऐसा हो सकता है कि आपको ये चीज़ लिस्ट फूड को भेजनी पड़े, तो यू नीड टू ट्रांसफ़र द यूज़र इन्फॉर्मेशन। बट आप ये कितने लेवल तक करोगे, दैट इज़ एन इशू। अगर यूज़र गलत हुआ या फिर यूज़र नल हुआ, तो सारे कंपोनेंट्स एक साथ, लाइक इट वुड बी हार्ड टू मैनेज और शेयर दी प्रॉब्लम्स। किस प्रॉब्लम क्लियर हो रही है हमें कि इशू क्या है? ढेर सारी स्टेट्स हैं, एंड वन मोर प्रॉब्लम है इसके, रिएक्ट में सिर्फ पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा भेज हाँ, सकता है। यस। ओके, तो चाइल्ड कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट को डेटा नहीं भेज सकता। ठीक है, तो हमारी ऐप को ही ये सारा डेटा जो है वो सबको सबको पास करना पड़ेगा। तो या तो मैं सारी स्टेट को ऐप पे रखूँ, तो फिर ये ऐप पॉल्यूट हो जाएगा, मतलब कि सब यहीं पे रखना पड़ जाएगा मुझे। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू अवॉइड दिस। इसी के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एज, ठीक है, जितनी जितनी जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क्स हैं, तो वो सारी एक चीज़ सपोर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रीडक्स। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज रीडक्स। ओके, अच्छा, स्टेट बेसिकली, लिफ्टिंग जो स्टेट है वो भी, मतलब वो हम हटा सकते हैं ना इसके थ्रू। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। गाइस, लिफ्टिंग दी स्टेट अब क्लियर है सबको? लिफ्टिंग दी स्टेट अब क्या है? ओके, इसको देखते हैं guys, ठीक है। तो लिफ्टिंग दी स्टेट अप में हमने क्या गड़बड़ की थी और क्यों हमने हैक लगाया था, वो देखते हैं। ठीक है, तो हुआ ये था कि दिस वाज आवर ऐप कंपोनेंट। ठीक है, ये थी मेरी ऐप कंपोनेंट और मैंने यहाँ पे लिखा था प्रोफाइल। ठीक है, सो आई से प्रोफाइल इन ओवर हियर, और मैंने यहाँ पे लॉगिन बनाया था। इशू ये हुई थी कि इस लॉगिन को पता था, इस लॉगिन ने एपीआई कॉल की, और एपीआई कॉल पे इसके पास यूज़र और इज लॉग्ड इन था। ठीक है, इसके पास इज यूज़र और इज लॉग्ड इन की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये लॉगिन कंपोनेंट है। ठीक है, आप ऐसा समझो ये फॉर्म है। लेकिन रिएक्ट के साथ इशू ये है कि ये चाइल्ड कंपोनेंट पेरेंट को डेटा कभी भेज ही नहीं पाया। तो अगर ये इसको डेटा नहीं भेज पाएगा, तो डेटा की फ्लो किस डायरेक्शन में होती है गाइस? टॉप टू बॉटम। ठीक है, पेरेंट्स टू चाइल्ड। करेक्ट, सही बात है। तो पेरेंट चाइल्ड को ही डेटा भेज सकता है, फिर चाइल्ड डेटा नहीं भेज पाएगा। तो हमने क्या किया था, इसको सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि इस स्टेट को यहाँ नहीं रख के, हमने कहा कि एपीआई तो यहीं रहने देते हैं, यूज़र और इस लॉग्ड इन को यहाँ से करके हमने ऐप में मूव कर दिया था। तो ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है कि एक हम कह रहे हैं ना कि एक कंटेनर बना देंगे अलग से। ठीक है, तो स्टेट को ऐप में रखना ही नहीं है, यहाँ पर रखना है। ठीक है, कहीं एक रिडक्स, इसीलिए हम रिडक्स पढ़ने जा रहे हैं कि आई विल हैव अ यूजर ओवर हियर, और मैं यहाँ पे इज लॉग्ड इन भी यहीं पे रख दूंगा। ये सारे इसी से शेयर करेंगे। ठीक है, तो किसी को भेजनी नहीं पड़ेगी। एक और इशू ये है कि अगर प्रोफाइल की कोई चाइल्ड आती है यहाँ पे, ठीक है, तो प्रोफाइल की कोई चाइल्ड कंपोनेंट आती है, तो आपको और सबको यूज़र की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सबको यूज़र को जानना है। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, तो चेकआउट पेज तक यूज़र की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ भी अगर वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करता है, तो उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। या तो आप पास करते हुए जाओ बार बार, और बीच में ऐसे भी कंपोनेंट आएंगे जिनको ज़रूरत नहीं है, तो आप उनको भी पास करोगे। तो दैट इज़ दीज आर सम इशूज़ जो कि हमें सॉल्व करना है। तो इसीलिए हम रिडक्स देखने जा रहे हैं। तो रिडक्स क्या कह रहा है? रिडक्स इज सेइंग कि हेल्प्स यू राइट एप्लीकेशन दैट ओके दैट बिहेव कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंट बिहेवियर का मतलब देखते हैं। ठीक है, ओके, कंसिस्टेंसी देखते हैं कि व्हाट इज कंसिस्टेंसी बेसिकली। ओके, एक चीज़ याद रहे हमेशा कि अगर कोई कंपोनेंट माउंट से हटती है, तो उसकी स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या मतलब है मेरा? कि आई सी द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट। ठीक है,
जैसे मैं इसको क्लोज करूँगा ना, तो वट एवर स्टेट यू सी, अच्छा स्टेट क्या है, अ सिंपल एग्जाम्पल, जब जब मैं बोल रहा हूँ तभी एनिमेशन रन कर रही है, राइट? तो दिस इज अ स्टेट, कि शो एनिमेशन एक बुलियन हो सकता है जो कि इस स्टेट को दिखा रहा है, ठीक है? या फिर ये क्रॉस बटन पे एक स्टेट लगी होगी, शो इज पार्टिसिपेंट स्क्रीन ऑन, या फिर शो पार्टिसिपेंट मॉडल, तो वो ट्रू है तभी मैं देख पा रहा हूँ। जैसे ही मैंने बटन क्लिक की तो आई डोंट सी इट नाउ। तो मैं सिर्फ बुलियन से ही कंट्रोल कर सकता हूँ इसको। यूआई में मैं बुलियन लगा दूंगा कि शो पार्टिसिपेंट मॉडल, अगर वो फॉल्स होगी तो फिर वो मुझे मॉडल नहीं दिखेगी। आर यू गाइस गेटिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है? तो दिस इज दी हाँ, आइडिया, यस। ठीक है? तो यही सारी चीज़ ना हम यहाँ पे मूव करने वाले हैं। और कंसिस्टेंसी मेंटेन, अच्छा क्यों मैंने डिस्कस किया कंसिस्टेंसी, मतलब कि अगर ये वेरिएबल चेंज हो रही है ना, तो सारे कंपोनेंट्स को पता होना चाहिए ये, ठीक है? सबको पता होना चाहिए इस वेरिएबल के बारे में, ठीक है? तो दैट इज़ व्हाट कंसिस्टेंसी इज। और क्या कह रहे हैं, सो द नेक्स्ट आइडिया इज बेसिकली ये सेंट्रलाइज हो जाएगा, जो कि हम स्टेट हम बनाने वाले हैं, अभी देखेंगे इसको कैसे करेंगे। और ये कह रहा है कि किसी यूआई लेयर के साथ काम करेगा। यूआई लेयर के साथ काम करने का मतलब कि इट विल वर्क विद एनी ऑफ दी, ठीक है? सो इट विल वर्क विद एनी ऑफ द फ्रेमवर्क्स, जैसे कि एंगुलर के साथ भी काम करेगा ये, एंड रिएक्ट व्यू सबके साथ इट विल बी वर्किंग। ओके, सो हाउ टू क्रिएट वन, हाउ टू ऐड वन, दैट इज अ सिंपल स्टेप। सो उसको भी देखते हैं। सो आई विल डायरेक्टली से, okay, so guys, if you're on machine, so I would recommend to install this with me so that we can have a quick go through. So हमने Redux install किया, okay, so just install the Redux package, and what we'll be saying basically is, okay, let's wait. Okay, so this is done. Okay, so the idea is to create a separate folder which will hold the reducers, okay? There is something called as reducer. We'll discuss about this reducers, no issues, okay? And this is the action, okay? So we have actions, we have reducers, okay? So we'll be discussing about actions and reducer, okay? So idea is कि एक store बनाएंगे, store. So here is what we need to create a store like. So how is my store going to look like? So I will have an initial state, ठीक है? So एक initial state होगी हमारे पास, and this will be an object. यूआई के स्टेट्स को नॉर्मल बूलियन और ये ऑब्जेक्ट ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें ऐसा कुछ यहाँ पे वो नहीं रखना। जैसे शो मॉडल वाला था, तो शो मॉडल ट्रू होगा तो फिर मॉडल दिखेगा, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा, दैट्स इट। सिमिलरली यूजर का डेटा मैं यहाँ पे ट्रांसफर दे देता हूँ। यूजर डेटा वुड बी एन ऑब्जेक्ट एंड इज लॉग्ड इन, एक बूलियन होगा कि यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं। हाँ, आई नो कि लाइक ऑथेंटिकेटेड पेजेस को इसकी ज़रूरत है, लेट्स से अमेजॉन फ्लिपकार्ट, सो दे नीड कि यूज़र हो। यूज़र नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है? तो तभी भी आप सारी चीज़ें, सारे आइटम्स देख पाते हो जो आपको खरीदना, आप देख पाते हो। हाँ, यू कैन नॉट चेकआउट, आप चेकआउट नहीं कर सकते बिकॉज दैट नीड्स ए यूज़र आइडेंटिटी। इसीलिए वो उतनी ही चीज़ें आप कर सकते हो जितनी पब्लिक एपीआई में पॉसिबल है। प्राइवेट एपीआईज वोंट अलाउ इट। तो दिस इज वन थिंग इज, ठीक है? सो इनिशियल स्टेट, वट एवर स्टेट यू वॉन्ट टू शेयर, ठीक है? सो इसका आइडिया, बेसिक आइडिया देख लेते हैं, ओके? सो जस्ट अ बेसिक ओवरव्यू what we are going to do, and then we can just directly jump to code. तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ स्टोर, ठीक है? एक सेंट्रल स्टोर बनाएंगे। स्टोर व्हाट इट विल बी हैविंग इज जो भी स्टेट रिक्वायर्ड है यहाँ पे, शेयरेबल स्टेट जो है ना, शेयरेबल स्टेट्स होंगे वो सारे यहाँ पे रिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज आर लॉग इन वेरिएबल। सो शेयरेबल स्टेट से होंगे, सो यहाँ पे रिसाइड करेंगे स्टोर के अंदर। नेक्स्ट, ये होंगे मेरी कंपोनेंट। सो दिस इज सेपरेट फ्रॉम माय कंपोनेंट, ठीक है? तो ये हमारी कंपोनेंट से सेपरेट है। दिस इज नथिंग टू डू विद कि अब ये स्टेट किसको रखना पड़ेगा, ठीक है? सो समथिंग लाइक दिस, दिस इज माय एप्लीकेशन विच इज गोइंग ऑन रेंडरिंग और ये सारे काम कर रहा है, ठीक है? तो ये हमारी ऐप है, ये लॉगिन वाली कंपोनेंट है, ये प्रोफाइल है। तो रिएक्ट की एडवांटेज ये है कि आई कैन डिफाइन की कंपोनेंट्स, वो सारी कंपोनेंट्स मैं बता सकता हूँ कि अलग अलग बनाना, सो दैट इफ देर आर टीम एलोकेटेड। सो क्यों करते हैं?
सो इफ़ यू आर इन, सो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो HTML होगी तो एवरीवन हैज़ टू वर्क ऑन अ सिंगल कंपोनेंट, ठीक है, सिंगल HTML फाइल, बट वो यहाँ पे नहीं है. समवन कैन वर्क ऑन लॉगिन कंपोनेंट, समवन कैन वर्क ऑन कोई अदर टीम प्रोफाइल पे काम कर सकते हैं. सो दैट इज द आइडिया. सो हियर इज अ स्टोर विच विल होल्ड दिस शेयरेबल स्टेट, ठीक है. इसके अलावा व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज, सो हमें हमें दो चीज़ जो है ना अपने कंपोनेंट से हटानी है. क्या क्या हटानी है? ये है मेरी, ओके, सो नॉट दिस वन, सो दिस इज वेरी सिंपल. सो दिस इज माई डॉम, ठीक है. सो दिस इज माई डॉम, मेरी रिएक्ट की डॉम है जो HTML है. दिस रिक्वायर टू थिंग्स. सबसे पहले तो लेट्स सी फॉर्म सबमिट होगी तो ये बैकएंड को डेटा भेजेगी. तो आई हैव सम फंक्शंस रिटन, ठीक है. तो मैंने कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं यहाँ पे, इवेंट इवेंट हैंडलर हमने जो भी लिखे हुए हैं यहाँ पे. तो आई नीड टू रिमूव दिस. सबसे पहले तो फंक्शन यहाँ से हटाऊंगा मैं, एंड नेक्स्ट मैं यहाँ से स्टेट भी हटा दूंगा. इस फॉर्म कंपोनेंट का इतना ही काम रहेगा कि सिर्फ ये UI का पार्ट रिटर्न करे, जस्ट फॉर्म रिटर्न करे, और कुछ इसके पास ना हो. तो आई विल रिप्लेस दिस, ठीक है. सो आई विल नॉट रिप्लेस, आई विल जस्ट रिमूव दिस एंड रिमूव द स्टेट, ठीक है. तो दो चीज़ हम करने जा रहे हैं. तो टू रिप्लेस दी स्टोर, सॉरी स्टेट, हमने स्टोर का यूज़ करने वाले हैं. एंड फिर हमारी फंक्शंस को हटाने के लिए हम एक्शंस का यूज़ करने वाले हैं, एक्शंस, ठीक है. ओके गाइस, इज इट क्लियर टिल हियर? कोई डाउट है? एनी डाउट्स? No, clear to me. Okay. Guys, is it clear to us? What's the plan? Okay, just see this. So basically, what we'll be doing is this, we'll defining some actions, and action will hold the function, and this is going to hold the state. Okay. So okay, let's do this, guys. So let's create the store. Okay. I hope if the logic is clear now, what we are exactly going to do. तो फिर things are simple. ठीक है. So just code is just the thing that you guys need to remember how to perform the configuration. But ठीक है, the more or less the logic is this: move the functions here and move the store here in store. Okay. Rest with things will deal with that later. How to share the store data and all those things, that will come in the later part. But here's the thing. So I will say const store. Okay, how to create a store. Okay, let's see that also. And I will call this create a store. Okay. Create a store. Yep, thank you. So I will say create store from Redux, and this is the create store. Okay. So finally, I will be passing a store. But before that, guys, okay, so but before that, I need to do something else. I'll be creating a function. Okay, so I'll be creating a function over here. Function name will be a reducer. We'll discuss all these, why we are calling it reducer or what's the idea. Okay, so everything will be discussing. Okay, we'll discuss this too. Okay, actions can be many types. Login can be an action, then sign up can be action, form submission. So we created food adding API also, so that can also be an action. Okay, so we have lots of actions in over. Action dot type. So type will define ki what type of action the user has already performed. Okay, so user has performed. We'll discuss this. Don't worry. So for now, let's understand something. Store consists of two things: the initial state and the reducer. Okay. So we just need the reducer. So this function demands the reducer, or basically I can say this as store, but it's fine. Okay, it's totally fine. So I will just import this as a reducer. Okay, now this is the Sir, I think reducer are the pure functions है जहाँ पर हम only pure functions लिखेंगे. मतलब pure होगा बोलो. okay.
यस, रिड्यूसर में एक्शन में लिखेंगे प्योर फंक्शंस, ठीक है, एक्शंस आर ओके, प्योर फंक्शंस, ठीक है। एक्चुअली एक्शन से एक्चुअली हम डिस्पैच करेंगे वो एक्शंस। अच्छा, हाँ, एक्स, ओके ओके यस, ओके, आई थिंक। ठीक है, ओके। इज इट क्लियर पंकज, व्हाट इज द आइडिया? गे जस्ट फॉलो विद मी, ठीक है। सो जस्ट द कन्फिग्रेशन इज अ बिट जो आपको याद करना पड़ेगा, रेस्ट आई गेस इट विल बी क्लियर वंस वी आर डन विद द कन्फिग्रेशन, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर 5 minutes मोर एंड विल बी डन, ठीक है। तो हेयर इज द क्रिएट स्टोर थिंग, सो आई हैव क्रिएटेड द स्टोर, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन इज कि वी डिड दिस पार्ट, ये कन्फिग्रेशन हो गया खत्म, दैट्स डन। नाउ द आइडिया इज कि स्टेट तो हमने यहाँ पे मूव कर दिया सारा, हाउ इज दिस गोइंग टू बी एक्सेसिबल बाई दीज थिंग, ठीक है। तो अब आई नीड टू शेयर द स्टेट विद दीज कंपोनेंट्स, तभी नहीं पता चलेगा, लाइक लॉगिन है, यूजर की डेटा है, तो सब इनको शेयर करना पड़ेगा। तो हाउ आर वी प्लानिंग टू डू दिस? ओके, सो द आइडिया इज कि वी हैव समथिंग कॉल्ड एज प्रोवाइडर, ठीक है। सो आई हैव समथिंग कॉल्ड एज प्रोवाइडर। Now, Redux says कि in order to connect React with Redux, so we have something called as React Redux library. Okay, so this is the second library for the day. एक तो हमने Redux install किया and the second one is React Redux. ठीक है, so that is what going to provide us this provider. All right. Okay. Okay, so this is also done. Now here's the thing, guys. What I was waiting for, तो provider, ठीक है, from React Redux. React Redux. Just follow with me, ठीक है. So I know the syntax is bit much, but it's worth it. Okay. So you guys will get the idea. Just a one-time process. Okay. And you will. So I'll be telling you something. लेकिन सर हमारे पास अ, जो स्टोर है Yes, right. इसके पास भी तो होता है ना, जैसे स्टोर डॉट प्रोवाइडर करके करते हैं हम लोग। Provider. Okay. हम्म, सो ठीक है, प्रोवाइडर विल आस्क फॉर अ स्टोर आर्गुमेंट, ठीक है, वो स्टोर आर्गुमेंट को हमें ऐसे पास करना पड़ता है। प्रोवाइडर इज कमिंग फ्रॉम दिस वन, ठीक है, वो इसके पास से आता है, रिएक्ट रिडक्स के पास है। जितनी भी कनेक्शन वाली काम होंगी ना, सो स्टोर बनाने वाली, एक्शन करने वाली, ये सब रिडक्स से हो जाएगा, ठीक है। कनेक्शन वाली जो काम है, लाइक हाउ आर वी गोइंग टू शेयर दी स्टेट, या फिर हाउ आर वी गोइंग टू कॉल दी एक्शन, तो वो सब काम रिएक्ट रिडक्स से करेंगे, ठीक है। हाँ, आई थिंक सर मुझे एक चीज समझ में आ रही है, सॉरी यस टू भाई, इंटरप्ट यू। यस यस भाई। यहाँ पे कि हाँ हाँ। ये जो रिएक्ट रिडक्स है कहीं बिहाइंड द सीन ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर रहा होगा ना, क्योंकि वही डायरेक्टली हमें स्टेट का यूज मतलब करा सकता है। जैसे हम कहीं ग्लोबली रख लेते हैं स्टोर, मतलब स्टेट को, तो वो उसके थ्रू हम यूज कर लेते हैं, यस क्योंकि यस। प्रोवाइडर वही कॉन्टेक्स्ट एपीआई प्रोवाइड करता है। यस भाई, यस, सही बात है, ओके सही ओके। बात है, यस यू आर करेक्ट, ठीक है। तो हम उसको देखेंगे, ओके। सो व्हाट बेसिकली दैट इज, तो एंड यस, वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई ही है, ठीक है। So that is the context API. All right, guys. Context API, and I can. Okay, I will share that link. Okay, so you guys can have a look at it too. So here's the thing, guys. So I did this. Okay, so like we did add the provider. Now the next part. Okay, how are we going to call the action? So we'll remove things from a component. अभी यहीं से remove करेंगे इसको, ठीक है। So we'll clean this component first, फिर we can move to other components to clean. Okay, now this is the one thing. The next thing, actions. Okay, so what are actions basically? Just a sample action for you guys, and here it is. ठीक है, so, and also sample functions for you guys, and here it is. Let's create a simple counter is set to 0. All right, so counter variable gets, okay. Now the case is basically the case is, okay,
we'll try to frame the connection. Okay, so connection frame करने का try करेंगे. Okay, so let's say that increment, so inc mean increment. Okay, so increment to what, we'll see. Okay, we'll see that. Actions, what we discuss कि स्टेट को मूव करने के लिए विल क्रिएट अ स्टोर, और फंक्शंस को मूव करने के लिए हम एक्शंस रखेंगे. तो एक्शंस आर बेसिकली द फंक्शंस. ठीक है, so actions are basically the functions that are going to okay, do a job. Currently, just an example for you guys ki how to increment the counter, increase counter. So there's an increase counter function. Okay, so increase counter function, and that's increase counter, or let's say set counter. This would be better. This would be a better example for you guys. If there's a set counter, okay, this is num, and here's the idea. Okay, here's the idea. Okay. Guys, a question for you. What are pure functions? What A are pure function is like which returns always same output on same input, and मतलब outside मतलब वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं करता. अगर हम बोले बिल्कुल सही जो बात है. इनपुट देंगे वही आउटपुट मिलेगा. बिल्कुल सी बात है, बिल्कुल सी बात है. ओके, थैंक्स पंकज, विल सी दिस फंक्शन गाइस. सो गाइस, रिमेंबर वन थिंग, द पॉइंट इज कि okay, these functions, ठीक है, so the functions basically in over here, so the जो भी functions होते हैं pure functions, so actions are pure function. Let me create it. Okay, then we can discuss it further. ठीक है. other yeah Pankaj, thanks for that. ठीक है, your answer is correct. um, the function is returning a simple JavaScript object. Remember, simple JavaScript object return करा है. Here I have the type and here I have the data. ठीक है, so I have the type and the data. Now, what I will be saying exactly is, okay, this is the state, guys. Okay. Basically, I will spread the state, and what I will say is, कि whenever this counter is there, okay, then we have actions dot data. Okay, actions dot data. Now here's the thing, guys. Okay, just it will make a sense now. Okay, not serious case. You see this action ने type और data return किया. हमने थोड़ी देर पहले रिड्यूसर बनाते टाइम एक्शंस डॉट टाइप पे स्विच लगाया था. तो दिस इज द सेम टाइप जिसकी मैं बात कर रहा था. इफ द टाइप मैचेस विद दिस वन, तो इट विल कम ओवर हेयर एंड डू द ऑपरेशन. तो फिर वो नया वाला स्टेट रिटर्न कर देगा. ठीक है, सो इट विल रिटर्न द न्यू स्टेट, एंड दिस इज द थिंग. ठीक है, सो स्टेट स्प्रेड द स्टेट एंड इट्स देन ऐड द काउंटर, द एक्शन डॉट डेटा. ओके, सो okay, action dot data, so counter action dot data, and this will be the new counter जो भी set होगा. All right, so we saw an example of store, we saw an example of action. Now how exactly, so there are two things still remaining. ठीक है, तो we have got an idea कि state यहाँ पे move करेंगे, function यहाँ पे move करेंगे. We did again one more thing कि store is going to share data with help of provider, but one more thing is remaining. The thing is remaining here is basically कि how are we going to call the action. मतलब कि इस एक्शन को मैं कैसे कॉल करूँगा. आई हैव रिटन द एक्शन. यू कैन से सर कि आप इसको एक्सपोर्ट कर लो. ओके, लेट्स एक्सपोर्ट दिस. द फर्स्ट स्टेप, आई विल एक्सपोर्ट द एक्शन. ठीक है, सो आई हैव जस्ट एक्सपोर्टेड द एक्शन. Second, okay, so I did export the action. Now second step, and let me do this in over here. So can I call the action directly? You can call the action directly, but that is now that is not how it will work. ठीक है, उसको भी देखते हैं. In order to get the state from, okay, the redux, we need to use connect.
Okay, and all it is. Let's see this. We'll discuss each and everything. Don't worry. So, so what benefit it is going to give us? We talked about a problem. The problem was कि if I want to share the logged in data is logged in, so I have should I share it to all the components? Should I share user to all the components? And that was a problem. Problem is कि if I want to share the user data, ठीक है? If I want to share the user data to let's say component which is here, ठीक है? So let's say I want to share data to this component which is here, ठीक है? User data. But here's the issue. App is having user, ठीक है? Let's say user. I want to share the data to this component. In traditional React way, user data has to go to profile, ठीक है? तो सबसे पहले प्रोफाइल के पास भेजेंगे, and profile is going to set the user to this component. इसने इसको भेजा है, इसने इसको भेजा. रिगार्डलेस प्रोफाइल को इसकी ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है? रिगार्डलेस प्रोफाइल को इसकी ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर भी डेटा इसने भेजी है, तो दिस इज़ एन इशू, ठीक है? आई वॉन्ट कि स्टोर जब मैंने अलग करी दिया तो मैं डेटा सिर्फ उसी को भेजूँ जिसको रिक्वायरमेंट हो, ठीक है? तो जिसको मैं डेटा भेजूँ उसी को रिक्वायरमेंट हो, मीन्स इट शुड ओनली रीच टू दिस कॉम्पोनेंट, यहाँ पे मुझे डेटा ना भेजनी पड़े. गेस आर वी गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई डिस्कस्ड? Yeah, can you explain again? Actually, I missed the ठीक है. things. माई पॉइंट इज कि लेट्स से दिस इज सो ऐप की कंपोनेंट यूजर चाइल्ड कंपोनेंट एंड प्रोफाइल हैज सम अदर कंपोनेंट, ठीक है? लेट्स से यूजर की कंपोनेंट. ओके, माई पॉइंट इज इफ आई वांट टू शेयर दिस यूजर ऑब्जेक्ट टू दिस लास्ट कंपोनेंट, तो मैं डायरेक्टली तो शेयर नहीं कर सकता. आई हैव टू गो थ्रू प्रोफाइल एंड देन टू यूजर. Yes, yes, yes. Got it. भले ही प्रोफाइल को यूजर की इन्फो की जरूरत ना हो. Yes. नाउ दैट इज द पॉइंट, ठीक है? Okay, so इसके लिए I have a solution. Okay, so we have a solution. The solution is called as connect API. Means कि स्टोर उसी को डेटा देगा जिसको उस डेटा की ज़रूरत है, ठीक है? तो ओनली टू द स्टोर जो उस डेटा जिसको उसकी ज़रूरत है. तो दैट इज़ व्हाट connect API is going to do. Connect API will connect to store our component to store which exactly requires the data, ठीक है? जिसको डेटा चाहिए, ठीक है? Now connect will share the state to this function and this function is going to connect will share state to this map state to props and okay, and this is going to share data to the application, ठीक है? तो आई विल पास द स्टेट, ठीक है? तो आई विल पास द स्टेट, okay, I'll pass the state as a prop to my application. Guys, read the so okay. So let's see the name of function map state to props. Map state to props से क्या मतलब है? ये इस स्टेट को प्रॉप्स में भेज देगा इस ऐप एलिमेंट के ये कंपोनेंट को. Okay, सही बात है. So basically state okay, so whatever state we are getting from the store ना, तो that is being shared to app as a main prop, ठीक है? मेन प्रॉप से जैसे शेयर हो. लेट मी शो यू गाइस समथिंग, ठीक है? मैं कुछ दिखाता हूँ आपको. आई विल प्रिंट दिस props डॉट मेन, ठीक है? आप बताना इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है? तो state and store and here is what I have this props dot main and not props dot main exactly, there's dot props dot main. All right, so there's dot props dot main. Now this is exactly going to print the props, okay? So this is exactly going to print the props. Let's see this, okay? Let's see this. Okay, what does it say?
It says state and store undefined. Okay. So are we missing something? So let's see. So const connect state to props. And is this connect from React Redux? Yes, it is also done. Then we have the provider, we have the reducers in over here, and reducers are added in over. Okay, the missing thing. So we need to by default, by default means initially the default state will be our state, just the state. Okay. Now I see state in store and I see user is empty, is logged in false, and counter is 0. This is the same state which we have in over here. Okay. Okay. So this is what we are having, guys. Any doubts in this case? How we did this? Let's have a walkthrough of setup till now. Initial state of my application, reducer named function, which will change the state based on action performed, which we are going to see. Every time it will return a new state object, and with help of this I created a store object with create a store method from Redux, supplied it to the app. Okay, supplied create a store using the reducer, create a store using the reducer. Okay, then connect that store object to provider. Okay, connect that to provider, and finally the last connection is using the connect API, get the function, pass it to application. Okay, so this function is basically having the state, and this is passing the state as a props to application. Are you guys getting the point? Yes. Okay, any doubts, anyone? Pranav, Bharat, Nilanshi, guys, any doubts till now? This one is important. Basically, there is a toolkit. Okay, so I would like you to try this and then try the toolkit also. Okay, so toolkit is basically um, okay, so toolkit is basically the newer version of React, but I want you guys to see this because इससे थोड़ी सी clarity होगी how things are working and why we are exactly using it. Okay, so that is the whole point. Okay, some things, guys. Okay, नेक्स्ट एक्शंस. सो बेसिकली एक्शंस एक्शंस कैसे परफॉर्म करेंगे? इट्स द पॉइंट कि हमने स्टेट तो रीड कर ली. ठीक है, दिस डॉट प्रॉप से डॉट मेन से. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू सेट द स्टेट. सो not only not only do we get the okay, so not only do we get this. Okay, not only we get this main state using connect, we get something called as dispatch. Okay, so we get something called as dispatch. Let's see dispatch. Let's see dispatch. So set counter. Okay, set counter. Okay, and what is the set counter? Not need this though, but take it. So this is the set counter. Okay. So the basically we get something as dispatch. We get something called as dispatch. Now dispatch, what it says कि whatever you object pass in over here ना, जो भी object आप यहाँ पे pass करते हो. ठीक है, तो मान लो आपने increment यहाँ पे pass कर दिया and यहाँ पे आपने data pass कर दिया, let's say num कुछ भी हो सकता है. ठीक है. Okay, guys, let me show you something. So how to call the function from here, guys? How to pass argument from here? Should I do this or not? How many of you say not to do this?
how to call function on click with something like this. Not to this, not to do by this. Actually, we need to pass a function. We can Okay. add a arrow function. Okay, something like this, right? Yeah, this way. Yes, correct. So guys, remember, whenever you have to pass an argument to a function, please do this. Please do not do the back one, because जब भी रेंडर होगा तो फंक्शन खुद चल 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 जाएगा. ठीक है, so don't do this. Okay, please don't do this, and this is how you can do this. Okay, तो ये रहा हमारा point. Okay. Okay, all right. The conclusion is, here is the button with no text, so let's add a text. Increase counter or have set counter. Okay, see the set counter, guys, and let me show you something. So as soon as I set the counter now, just see this counter is set to 4. Are you guys getting this, guys? Yes. What we did here, so we did pass an object and pass the data. So type and data. So type is increment. Have a close look. Object is passed to dispatch. Object is received in action. Action dot type is inc. Inc. Action dot data is 4. Data is 4, and the 4 is set as the counter. All right, all right. So this is what we have. Any doubts? Any issues? Anything? No. Okay. Moving on. बेसिकली सो यूल से सर हर बार ऑब्जेक्ट पास करेंगे नहीं, इसीलिए हमने सेट काउंटर वाला एक्शन बनाया है. दिस नॉट दिस गाइस, वी हैव एनी अदर सेट काउंटर, राइट? सेट काउंटर फ्रॉम एक्शन. ठीक है, सो सेट काउंटर फ्रॉम एक्शन एंड विल पास द नंबर फ्रॉम इट इज डूइंग द सेम थिंग. सेट काउंटर भी सेम ही काम कर रहा है. उसको उसके कॉल पे वो ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा जो हम अभी ऑब्जेक्ट पास करे थे. आर यू गाइस गेटिंग दिस? या तो आप ऑब्जेक्ट पास करो, या तो आप अलग से एक्शन बना दो. Yes, it is an action creator function, है ना? करेक्ट, वेरी करेक्ट. तो गाइज एक्शंस का यही काम है, एंड दिस इज हाउ वी आर सेटिंग दिस स्टेट. सो अगर मैं इस काउंटर का यूज कहीं कर रहा होता तो आई एम एबल टू डू दिस. लेट मी शो यू गाइज समथिंग. ठीक है, तो आई डिड समथिंग डायनामिक जो कि मैंने बिना स्टेट के किया. दिस डॉट प्रॉप्स डॉट काउंटर मेन डॉट काउंटर, सॉरी. this dot props dot main dot counter. ठीक है, तो is the counter value which is 4, and let me show you something. So 0 a value, and I am setting the value to. Can we say that we created a state without using a state? Can I say that? हमने स्टेट बनाया बिना स्टेट को यूज किया रिएक्ट में. आर यू सेटिंग दिस? हमने स्टेट चेंज भी कर दिया बिना किसी दिस डॉट स्टेट के यूज किए. कैसे समझ में आ रहा है सबको हमने क्या किया? We did a UI change without a state variable and this dot set state. Yes, मेरे को तो आ रहा है. Guys, please, any inputs from Pranav, Bharat, Lanchi? This is very important. ठीक है, I can really have a walkthrough, give a walkthrough again if you guys want. Okay, let's see this again. What we did. Okay, and what was the issue? The issue is I want to clean the component. मतलब कि I do not want कि state और ये functions यहाँ पे रहें. मैं इनको हटाना चाहता हूँ यहाँ से. तो I said कि create a store. ठीक है. Guys, give me a minute. Let me drop a message to the other group so that they have classes. Okay, just a second, guys. I'm searching for the batch which did have a session. Okay, this is 9. Okay, now these guys are having at 8. Okay,
All right, guys. So we do have some time, and let's spend 5 minutes, and we'll continue with this tomorrow. Okay. So, guys, any doubts? Any doubts, guys? Anyone? Please feel free to ask. हाँ Okay. सर, मुझे ना लास्ट टू सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए। एक्चुअली वो मिस हो गए थे मुझसे, लास्ट टू सेशंस। उसमें आपने वो कराया ना, लोड मेल मैनेजर, आई थिंक कुछ ऐसी चीजें। नोड मेलर। अच्छा, हाँ हाँ, यस, वो मतलब मेल कैसे भेजेंगे नोड एप्लीकेशन से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो वो ठीक मुझे है। रिकॉर्डिंग चाहिए। Yes, yes, ठीक है, guys. So, guys, I will share with in the group itself. ठीक है, that is very important. How to send a mail using Gmail. ठीक है, तो वो आप कर सकते हो उसको. We'll see that. Okay, so let's take 5 more minutes, and one thing I need to show you guys. Remember, this dot set state merges the object to current object. ठीक है, पर ये object merge नहीं करता है. ये हर बार एक नया ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करा है, एक हर नया स्टेट ही रिटर्न करा है. आर यू गाइस गेटिंग दिस? गाइस, ये क्लैरिटी है इस पे सबको? फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज, ठीक है, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट इज बेसिकली कि एक्शन फंक्शंस आर प्योर फंक्शंस, जो ये पंकज ने डिस्कस किया. सो लेट मी गिव यू टू एग्जांपल्स गाइस. ठीक है, अब ऐसे देखो. ठीक है, सो लेट सी इज इक्वल्स टू लेट से 34. ठीक है, लेट्स कीप इट सिंपल, लेट्स कीप इट 3. ठीक है, लेट्स इक्वल्स टू 3. ओके, अगेन function 1, and here's the idea: a comma b, and the whole idea is to return a plus b. ठीक है, now I want to see you guys something. ठीक है, I want to show you guys something. What do we mean by pure function? So, okay, not this. Let's change the function name so that you right now, guys, the idea of pure function. ठीक है, see this. Function one is a pure function. ठीक है, तो function one is a pure function. How is that? Can you guys tell it? So I am saying कि जो भी, if I keep the value of a and b same, it is always going to give me same result. ठीक है, अगर मैं a और b की वैल्यू सेम रखूँ तो क्या मुझे हमेशा 6 देगा? Are you guys getting this? यस, ठीक है, ऑन दी अदर हैंड, क्या मैं कह सकता हूँ कि इफ आई कीप द वैल्यू ऑफ 2 and 4 in function 2 same, so now says yes, thank you guys. Okay, just see this guys. So can I say this again? Can I say कि अगर मैं फंक्शन 2 में, नॉट 1, फंक्शन 2 में 2 और 4 दूं, तो क्या ये मुझे हमेशा 9 देगा? नहीं, ओके, सो क्यों, व्हाई इज दैट? क्योंकि सी जो है वो आउटसाइड, मतलब आउटसाइडर है। अगर बोले बिल्कुल ग्लोबल सही, वेरिएबल है, अगर हम बात करें बिल्कुल सही. तो अगर सी की वैल्यू अगर चेंज हो गई तो अगर 2 और 4 हम हर बार देंगे तो वैल्यू डिफरेंट है। 9552125. ओके, सो दिस इज द आइडिया गाइस. ठीक है, तो क्योंकि अब ये 2 4 जाएगा ना, तो दिस वाज गिविंग 9 एंड दिस इज गिविंग 14. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अवॉइड. तो हम यही अवॉइड करेंगे. आर यू गाइस गेटिंग द प्योर फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ प्योर फंक्शन एंड इम्प्योर फंक्शन? क्यों इम्प्योर हो सकता है? ओके, द इम्प्योर थिंग्स कैन बी लाइक द मेन पॉइंट इज कि ओके, सो द मेन पॉइंट इज बेसिकली कि क्या होता है कि नेटवर्क कॉल हुई या फिर डेटाबेस कनेक्शंस हैं, तो ऐसा हम हमेशा सक्सेस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि फेलियर हो जाए, तो हमारी फंक्शन ऐसी चीज़ों पे डिपेंड करेगी, तो फिर हम प्योर फंक्शन नहीं बोलते उसको. तो इसलिए हमें प्योर फंक्शन होगी. नाउ वन प्रॉब्लम विल बी सॉल्विंग टुमारो, कल की क्लास में, कि मैं तो कह रहा हूँ कि सर प्योर फंक्शन होनी चाहिए, बट ये नेटवर्क कॉल हो रही है जो कि गड़बड़ कर सकती है. तो देखेंगे कि इसको कैसे हैंडल करने वाले हैं रिडक्स में. ठीक है, so we'll talk about a middleware, and please guys have a look to the lecture. ठीक है, maybe I will share the code today itself so that you guys can uh, like we can have a discussion tomorrow, ताकि हम इस पर और डिस्कस सर कर. कल लेक्चर की टाइमिंग भाई जल्दी शेयर कर देता हूँ, आज इवनिंग में करनी पड़ी बिकॉज आई थॉट कि लाइक मुझे भी कुछ काम था, एंड आई वाज, आई इवनिंग इज गुड राइट?
या फिर सुबह से ही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं दोनों टाइम चलेगा, कोई भी टाइम। ओके, वैसे ओके, इवनिंग सही है सर, अगर कर लो तो। ठीक सॉरी। है, ठीक है। हाँ। ओके, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेट्स मीट टुमारो एंड सी यू देयर गाइस। बाय। थैंक यू। या See you guys there. क्या हुआ, 5 मिनट का टाइम है। हाँ, सारा दोपहरिया क्लास सरकार सरकार गई, साफ हो गया मुझे। अरे भाई, क्या वीडियो देखना, सीनियर है वो, मतलब कि जॉब करती हैं। फिर तुमको कैसे कैसे लोग फॉलो करते हैं? वो हमको फॉलो नहीं करते हैं, आप खोल, अरे बाबा खोल के देखो, खोल के देखो, मैं क्या कर रहा हूँ। उनको खोल के देखो पहले। वो पता है स्टोरी क्यों लाइक करते हैं, आप बताओ क्यों लाइक करते हैं? ताकि मैं स्टोरी देखूंगा, ठीक है, सीन देखूंगा और मैं उनको फॉलो करूंगा। छी। इसलिए वो क्यों नहीं है? अच्छा, तो तुमने क्यों पब्लिक अकाउंट किया हुआ है? देखूंगा नहीं, अभी हमारे से ले गए थे जो भी आइडिया। बेवकूफ, पागल, कौन आजकल के जमाने में पब्लिक अकाउंट करता है? अरे करते होंगे जिनको शो ऑफ करना है, पैसे कमाना है। नहीं तुम इधर आ, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा हूँ, तो वैसे अपने हाथ से टाइप कर 55125 क्या? 955125 9 5 5 5 5 1 1 2। 5 हाँ, ये क्या है, तुमसे इतना बतियाता रहता है, इसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है? कौन? वही विष्णु, बोलो गर्लफ्रेंड ढूंढो। क्या करना है? जितना बतियाता है बोलो, दूसरी गर्लफ्रेंड देख लेते। वैसा ना करो तुम। क्या बात कही, तुम क्या है? प्राइवेट